Hello dear students, this is Devangi Dalia here, and today in this video I'm going to explain lesson number 2 of the book It So Happened, for which the title is Children at Work. Now when we read this title, we come to know that we are going to talk about children in this lesson who are at work. So this lesson practically deals with the problem of child labor. We all know in India child labor is one of the common problem. Although government has banned child labor, it has abolished, yet in many places of our country still these practices are followed. Now there are many reasons why children have to work. At times either small children are abandoned by their parents, means उनको छोड़ दिया जाता है रास्ते पे उनके पेरेंट्स के द्वारा, or else they are not happy with the conditions at their home, so that is why they run away from their home and they want to live their life on their own, and they cannot live their life without earning, so they have to do one or the other work. At times we see small children begging on the road, or at some stalls they are working, sweeping, doing other sorts of things. Various small children are even the part of domestic help. At home also, various domestic workers are small girls. So they do not get to study just like you and us got to do in our childhood. They have to start earning at a very small age so that they can earn their livelihood. So here I'm going to start with the lesson. There are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. So, from these lines we come to know that children who are the victim of child labor or who has to work, there could be various reasons behind it. We cannot name one. But also, even if they are not abandoned by their parents, their family is not at all financially rich or financially stable that their parents can send them to school. So they have to start earning in order to make their livelihood. अपना 2 टाइम का खाना खाने के लिए they have to work because their economic condition is very poor. So they have to start working at a very tender age, and because of that they are not able to go to school or spend their childhood while playing and doing all of the stuffs that normal children get to do when they are children. Now this particular lesson, as I'm going to show you now, it is being authored by Geeta Wolf, Anushka Ravishankar and Arijit Sen, as you can see it here. This particular lesson is a small part of a novel Trash, which was written by these 3 people on rag picker children and recycling. The book talked about how various children were meant to work as a rag pickers, like a person who buys and sell rags, जो जैसे ये डस्टबिन में से बच्चे जो छोटे छोटे टुकड़े या चीज़ें होती है, in order to separate and recycle plastic and paper and all materials. Now usually जब हम कचरा फेंकते हैं तो हम हर चीज़ साथ में डाल देते हैं. Nowadays government has started this thing that we should separate dry and wet waste. So पहले वो चीज़ नहीं थी. Even after government has implemented, very few people are following it. अभी भी हम कचरा मिक्स ही कर देते हैं, चाहे गीला हो या सूखा हो. So these children have to work for it. They have to collect all the dry waste and give it to the factories or the people who recycle paper, plastic and all these things. So they are told to work all these things in order to earn little bit amount of money. So Trash is a novel from which this part of our lesson is taken. Now we'll begin with the lesson. Today in this video I am going to cover
only first two parts of the lesson because this lesson is quite big. First two parts I am going to explain in this lesson. Later in the next class I will be explaining third part. Now let's begin. Let's see some short brief points of the story. Here we are going to talk about a boy whose name is Velu. An 11-year-old boy runs away from home. He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. So from these storylines we come to know that we are going to talk about a boy named Velu. He was 11 years old and he had run away from his home. Now we don't know the reason कि वो क्यों भाग गया अपने घर से. We'll see it in the lesson. And after going away from his home, he is wandering, means इधर उधर भटक रहा है for hours before getting on a train to Chennai. So he just went on a train which was going to Chennai and he did not even have a ticket because he was not having any money. So before boarding the train, he was just wandering here and there, means moving here and there aimlessly. He didn't know where he had to go. टायर्ड एंड हंग्री, बहुत थका हुआ और भूखा था और उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है या क्या करना है या वो कैसे अपनी लाइफ जिएगा. तभी एक स्ट्रेंजर उसको मिलती है एंड ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू हर एंड देन फर्दर द स्टोरी बिगिंस. नाउ लेट्स सी. When the Kanyakumari Express, here Kanyakumari Express is the name of the train, pulled in at Chennai Central. Pulled in means arrived. जब वो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे आई, it took Velu some time to get off. तब उसको थोड़ा टाइम लगा उससे निकलने के लिए. When he finally stood on the platform, जब वो फाइनली ट्रेन से निकल के प्लेटफॉर्म पे आ गया, उसके लेग्स फेल्ट वॉबली, मीन्स अभी भी हिज लेग्स वर फीलिंग एज इफ दे आर शेकिंग बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ट्रेन. कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रेन से निकलने के बाद भी वी फील दैट आवर लेग्स आर स्टिल शेकिंग एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन. सो ही वॉज ऑल्सो हैविंग द सेम फीलिंग. उसको भी ऐसा ही लग रहा था कि ट्रेन से निकलने के बाद भी हिज लेग्स वर स्टिल शेकिंग एज इफ ही वॉज स्टिल देयर ऑन द ट्रेन ओनली. Oi, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. As soon as he stood on the platform, अचानक से एक पोर्टर उसको बोलता है कि ही आउट ऑफ द वे मीन्स उसकी रास्ते में से हटो. हियर पोर्टर इज़ अ पर्सन, यू ऑल मस्ट बी नोइंग. पोर्टर्स जो होते हैं यूजुअली रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स या होटल्स में पाए जाते हैं. वी कॉमनली कॉल देम कुली. वो हमारे सामान, लगेजेस और दूसरे जो लोड्स होते हैं वो उठाते हैं. सो वहाँ से एक पोर्टर जा रहा था विथ लोडेड ट्रॉली. उसकी ट्रॉली भरी हुई थी एंड वेलू वॉज इन हिज वे. सो ही टोल्ड वेलू कि उधर से हट जाओ एंड वेलू वहाँ से हट गया. ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. सो फाइनली एक बेंच खाली मिला. वेलू वहाँ पे बैठा और उसने अपना बंडल वहाँ पे रखा. नाउ in all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. For him, these all things were new. उसको समझ नहीं आ रहा था. He was not understanding what he should do because he had never seen a crowd of so many people in his life. Except only once a time when he was small, he went to a fair in the village. वहीं पे सिर्फ उसने इतना सारा क्राउड देखा था. उसके बाद कभी नहीं देखा था. And now this was the first time that he was encountering this whole crowd alone. People walked by, bumping into him with their suitcases. So लोग इधर उधर चल रहे थे. And we all know that stations पे बहुत crowds होते हैं, बहुत क्राउड होता है. सो पीपल वर लाइक बम्पिंग इनटू हिम. एक दूसरे से उससे बार बार टकरा जा रहे थे. उसका उनके सूट केसेस वेलू से टकरा रहे थे बार बार. अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर. सो अनाउंसमेंट वर कॉन्टीन्यूसली गोइंग ऑन द स्टेशन. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट अ TV हैंगिंग फ्रॉम द roof. So उसके बाजू में there were few people, they were sitting on their luggage and they were watching TV which was hanging from the roof and the noise from the TV was terrible, means it was not at all pleasant. उसको बिल्कुल भी वो आवाज़ अच्छी नहीं लग रही थी. Velu put his head down on his knees and finally for resting for a little time उसने जो अपना सिर है वो अपने knees के ऊपर
रखा. Feeling miserable and exhausted. He was feeling very sad, very much miserable because he did not know where he should go, what he should do, as well as at the same time he was exhausted, means very much tired. He had run away from his village 2 days ago. उसको अपने घर से भागे हुए 2 days हो गए थे. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. So 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था. 2 दिन हो गए थे घर से निकल के. वो सिर्फ थोड़े से पीनट्स और पीस ऑफ जैगरी, मतलब जो गुड़ होता है, वो लेके निकला था. एंड he had eaten nothing other than that. So he was feeling really very hungry. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. उसके बंडल में सिर्फ उसने अपने कपड़े, टाल एंड कोम लेकर वो आया था. He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. So first day when he ran away from his home, he had walked for most of the time. Means he had to walk because he was not having any kind of vehicle. So obviously he had to walk barefoot. And he reached Kannur. From there he took the train to Chennai. Now Velu had no money for a ticket. He was having no money. उसके पास पैसे थे ही नहीं टिकट के लिए. But luckily the ticket collector didn't turn up on that unreserved compartment on that day. किस्मत से वहाँ पे टिकट कलेक्टर वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आए ही नहीं. एंड उन्होंने वेलू से पैसे मांगे ही नहीं. सो ही गॉट सेव्ड और उसको किसी ने पकड़ा नहीं. ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर. उसने डोर के पास नीचे फ्लोर पे सोने की कोशिश की. बट अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट. बट nearby where he was sleeping, a group of men, they were playing cards and shouting all night. So from this line he meant to tell us that he could not sleep properly because of the continuous noise or the shouting of the men next to him. Hey, what, new to the town, hey? Called out a rough voice. Velu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. So सडनली अचानक से कोई उसको पुकारता है एंड सेज, ए क्या तुम ये टाउन में नए हो? एंड वो अपनी आंखें खोलता है एंड वेलू स्टार्ट्स लुकिंग हियर एंड देयर. देखता है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं बट कोई भी उससे तो नहीं देख रहा है. देन अगेन द पर्सन शाउट्स, हियर ए. ही टर्न अराउंड. बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. So now अचानक से एक लड़की का आवाज़ आता है. उससे पीछे से वो पुकारती है और कहती है कि क्या तुम ये टाउन में नए हो? At first वेलू इज सरप्राइज. ही डजन नो कि कौन बुला रहा है. फिर वो लड़की उसे बोलती कि हियर पीछे देखो, टर्न अराउंड. सो ही फाइंड्स आउट कि वहाँ पे एक लड़की होती है जो अराउंड उसी के एज की होती है और उसने एक बड़ा सा लूज सा बनियान पहना होता है. नाउ इन इंडिया पीपल मोस्टली जो मेल पर्सनस होते हैं वो बनियान पहनते हैं. सो उसके पास ऑब्वियसली वो लड़की भी एक रैक पिकर ही थी. शी वॉज ऑल्सो पुअर. उसके पास कपड़े नहीं थे. सो शी वॉज वेयरिंग दिस ओल्ड लूज बनियान जो उसके नीज तक आ रहा था और उसके हेयर बहुत ही स्टिफ, कड़क एंड ब्राउनिश थे. एंड शी हैड अ ह्यूज सैक. बड़ा सा एक सैक था उसके शोल्डर पे. शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इन इट. और वो क्या काम कर रही थी? वो फ्लोर से जो डर्टी प्लास्टिक कप्स थे वो उठा रही थी और उनको स्टफ़ यानी कि फिल कर रही थी, अपने स्टैक में भर रही थी. Now, why is she calling me? thought Velu, and why is a girl wearing a banyan? So Velu thought कि एक लड़की क्यों उसको बुला रही है. And being a girl, why is she wearing a banyan? Because he knew that banyan is something which is worn by male members and not by female.
No need to stare stupidly. What's your name? Velu muttered. Velu, looking away. So वो लड़की उसको बोलती है कि ऐसे कंटिन्यूसली स्टेयर करने की या घूरने की ज़रूरत नहीं है. यू टेल मी व्हाट इज़ योर नेम. सो वेलू मटर्ड. ही स्पोक इन अ वेरी लो एंड अ सॉफ्ट टोन दैट हिज नेम वॉज वेलू. लुकिंग अवे मीन्स उसने वहाँ से नज़र हटा ली. सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल. रन अवे फ्रॉम होम. So that girl asked Velu that what happened? Have you run away from your home? Velu didn't answer. He didn't want to tell some strange girl what he had done. He did not knew this girl, so he was not at all in the mood to give answers to her questions. He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. Now this is a very common problem जो उसके घर में भी हो रहा था. Why he has left his home? Because he was so much terrified of his father. He could not tolerate his father beating him for one more day. वो एक और दिन सहन नहीं कर पाता कि उसके फादर उसको मारते. And what he used to do, जो भी वेलू और उसकी सिस्टर्स अर्न करते थे, अर्न करके लाते थे पैसे, his father would snatch it away, यानी कि ले लेते थे उनसे, छीन लेते थे. And he used to spend all that hard-earned money on the drinking part. Don't think I don't know. This place is full of children like you. So what are you going to do here? Become rich? So अभी जो लड़की होती है वो थोड़ा सा मॉक करती है, उसको सुनाती है कि ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता है. You know this place is full of children like you. ये जगह जो है वो पूरी ऐसी ही हमारे जैसे ही चिल्ड्रन से भरी हुई है. सो तुम यहाँ क्या करने वाले हो? व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? तुम यहाँ पे आके रिच हो जाने वाले हो, पैसे कमा लेने वाले हो बहुत सारे. शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम. तो बैठती है उसके बाजू में. एंड वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली. तो धीरे से वेलू जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट होता है, उसको जगह देता है बैठने के लिए. ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेस. ही फेल्ट हंगर. अभी उसको बहुत भूख लगी थी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया था. सो कंटिन्यूसली दैट हंगरनेस वॉज पिंचिंग हिम. उसके स्टमक में बार बार पेन हो रहा था. एंड ही वॉज प्रेसिंग हिज स्टमक विद अ ग्रिमेस. जब बहुत भूख लगी होती है पेट में दर्द भी होता है. ग्रिमेस मीन्स यू आर मेकिंग अगली और वियर्ड एक्सप्रेशंस ऑन फेस बिकॉज समवेयर समथिंग इज पेनिंग. सो जो गर्ल है वो उसके एक्सप्रेशंस देख के समझ गई कि वेलू हंग्री है. सो she asked Velu, hungry? You won't get food by sitting here glumly making faces. I can find some if you want. तो जो गर्ल है वो उसको समझाती है कि अगर तुम इधर ही बैठे रहोगे ग्लमली मीन्स दुखी होके, सैड होके, फेसेस अलग अलग तरह के बना के तुम्हें यहाँ पे बैठ के खाना नहीं मिलने वाला. यू आर नॉट गोइंग टू गेट फूड लाइक दिस. सो इफ़ यू वांट सम फूड कम विथ मी. आई कैन फाइंड सम फॉर यू. सो शी offered Velu that she can find some food for him so he can come with her. She picked up her sack and started to walk away. अब वो अपनी सैक लेती है और खड़ी हो जाती है जाने के लिए. Velu stayed on the bench for a while. Velu had not decided yet that what he should do. Should he go after her or should he just sit on the bench? What should he do? Should he follow this girl? Where was she going to take him? So he was having various questions in his mind कि ये लड़की कहाँ जाएगी, उसे कहाँ लेकर जाएगी, क्या करवाएगी. He did not know anything. But she was disappearing into the crowd. अब वो लड़की जा रही थी. She was not staying back for Velu. So he had to make up his mind quickly. So फटाफट अभी वेलू को सोचना पड़ेगा कि वो फटाफट he has to make his mind कि वो उसके साथ में जाना चाहता है या नहीं. All right, he decided, and quickly he decided. Anyway, I have no idea where to go. He thought that वैसे भी उसे नहीं पता है कि कहाँ जाना है. So he thought that rather than just sitting and not knowing where to go, he would just follow that girl. He jumped up and ran after her. So quickly he stood up and started running after her. She wasn't even looking back to see where he was, and the girl was just carefree. She went away and she was not at all bothered whether Velu was coming after her or not. She didn't even for once looked back to see where Velu was. Part 2. Velu follows his friend through the crowded streets to a big building. Behind the building there is a big garbage bin. Velu wonders why they are there at all. So these are the storylines for part 2.
अभी देखते आगे क्या होता है. Where does the girl takes him through? From the first line we come to know that she takes him through the crowded streets, and from there she takes him to a very big building. Now he caught up with the girl as she was leaving the station. फटाफट उसने वो गर्ल को पकड़ लिया, मीन्स उसके साथ में आ गया वो. When they got to the road, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन. जब वो रोड पे पहुँचे तो वेलू सॉ दैट व्हीकल्स आर कंटिन्यूसली कमिंग एंड गोइंग. Vehicles are not at all stopping for anyone, and because of that smoke and dust flew at him from all sides. Because of continuous movement of the vehicles, smoke and dust were flowing and coming from all the sides, which was making his head spin, because of which he was feeling dizzy, tired, and also having a kind of a headache. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. अभी इतना ट्रैफिक वाला जगह में से they had to wait for a long time कि एक वो जगह निकाले फटाफट के जिसमें से वो भाग सके और दूसरी साइड पहुंच सके. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. Now Velu had not been on such roads before, so he was continuously hesitating कि कैसे क्रॉस करे रोड. He was not at all understanding, and the girl understood that, and finally when they saw a gap, girl ने उसको ड्रैग कर लिया, खींच लिया, और वो लोग दूसरी साइड पे पहुंच गए. And the girl starts shouting on him, what do you think you are doing, grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. तो गर्ल उसको समझा दिए कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो तुम. Are you grazing cows means are you just standing and feeding grass? अगर तुम ऐसे ही मिडल ऑफ द रोड में खड़े रहे तो यू विल बी चटनी मीन्स यू विल बी क्रश्ड. कोई भी व्हीकल आके तुम्हें बम्प कर देगा या ठोक देगा. वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. How had they managed to come through that? They walked along the side of the road under some huge signboards. Abhi finally they reached the other side, but still Velu's heart was beating fast because of the thing that happened on the traffic road. वो वापस सेंट्रल स्टेशन और ट्रैफिक को देखता है कि ट्रैफिक फिर से बढ़ रहा है और सोचता है, ही वंडर्स इन हिज माइंड कि कैसे उन्होंने ये ट्रैफिक को क्रॉस करके ये साइड आ गए. फिर ऑन द अदर साइड दे स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स. बड़े बड़े साइन बोर्ड्स थे, होर्डिंग्स होते, उसके नीचे दे वर वॉकिंग. वेलू लुकड अप एट द पिक्चर्स. ही स्टार्टेड लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑन द होर्डिंग्स, बनियान्स के, कार टायर्स, पेन्स, फिर वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स. ऑल दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स वर देयर ऑन दी ह्यूज साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, बट सारी चीज़ इंग्लिश में लिखी थी, सो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट. सो दिस टेल्स अस दैट वेलू डिडंट नो इंग्लिश. उसको इंग्लिश पढ़ना या समझना नहीं आता था. द गर्ल टर्न ऑन टू वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप. सो गर्ल जो है वो एक बड़े से ब्रिज की ओर चलती है एंड चलने लगती है. वेलू स्टॉप्ड एंड पिप्ड ओवर द रेलिंग. वेलू थोड़ी देर रुकता है और वो पीप करता है, मीन्स झाँकता है एक नैरो सी रेलिंग के थ्रू. अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी. सो ही कुड सी दैट फ्रॉम अंडर द ब्रिज द रोड इज़ गोइंग एंड मर्जिंग विद द सिटी अगेन. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. और दूर दूर के डिस्टेंस में उसको दिख रहा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, टावर्स है इस पर्टिकुलर सिटी में. तो गर्ल नाउ shows him, see that big building with the wall around it. If you are not careful, you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. ये लड़की बोलती है कि देखो वो एक बिग बिल्डिंग दिख रही है तुम्हें, उसके चारों ओर वॉल है. And if you are not careful, if you do something stupid, then you will soon be counting bars there. तो इतना बोल के जो लड़की है वो ग्रिन करती है, मीन्स हंसने लगती है. And she points out at the huge building. So Velu squinted. Squinted means when कोई चीज़ आपको ध्यान से अच्छे से नहीं दिख रही होती है तो you try to close one of your eye and try to see it carefully. So he also squinted and read the Tamil sign. Now that particular name of the building was written in Tamil and he could read Tamil. So he understood that that huge building was Central Jail. वो एक जेल था. And the girl was warning him कि अगर तुमने कुछ स्टूपिड काम किया तो तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा. सो शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू वॉर्न हिम कि कुछ भी ऐसा काम मत करना, बी केयरफुल, डोंट डू समथिंग स्टूपिड, दैट द पुलिस विल कैच यू एंड पुट यू इन जेल. सो फ्रॉम दिस वी कम टू नो
that Velu was not understanding English, but he was well aware of the Tamil language. So Velu asked, why? I haven't done anything wrong. You don't have to do anything. Just don't get caught, that's all. तो वेलू शॉक हो जाता है कि ऐसा क्यों बोल रही है. आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. सो ही टेल्स द गर्ल दैट क्यों मुझे जेल में जाना पड़ेगा. आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. सो गर्ल एक्सप्लेन्स दैट येस यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, बट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग ऑल्सो. इट्स जस्ट दैट इवन इफ यू डू एनीथिंग यू शुड नॉट गेट कॉट. पकड़े नहीं जाने चाहिए. वॉट डज शी मीन? वेलू वंडर्ड. ही वॉज नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडिंग कि उसको क्या करना चाहिए. वेलू वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग. ही वॉज वंडरिंग कि वो लड़की ऐसा क्यों बोल रही है. बट ही लेफ्ट दैट थॉट. मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद अ सैक ऑन हर शोल्डर. तो अभी वो ब्रिज ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका था एंड शी वॉज गोइंग डाउन. What was in it? Again and again, Velu was having this question that what was there in her sack. He had seen her putting plastic cups into it at the station. उसने देखा था कि वो उसके सैक में प्लास्टिक की सारी चीज़ें रख रही थी, बॉटल्स, पेपर, अदर थिंग्स. So he asked the girl, what are you carrying in that bag? तुम अपने बैग में क्या कैरी कर रही हो. So she says things, bottles, papers. वेलू वंडर्ड वॉट शी वॉज डूइंग विद देम. वेलू सोच रहा था कि उससे क्या करती होगी ये. बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन बिकॉज वेलू डिडंट know the girl that properly. He was feeling shy. He did not know whether he should ask this many questions to her or not. It was still morning but the sun blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. अभी तो सिर्फ सुबह हुई थी but still sun was shining very brightly in the sky and because of which the tar on the road had become very hot. And Velu was not having any slippers or shoes also. So because of that उसके जो bare feet थे, उसकी जो feet थे वो burn हो रहे थे, उसको जल रहा था पैर में. It was not like walking on a mud road. ऐसा नहीं था कि एक अच्छे से mud road पे चल रहे. He was soaked with wet because of the heat of the sun. He was completely soaked with sweat. मतलब completely अपने पसीने से गीला हो गया था. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. उसने बहुत कोशिश किया कि वो शेड्स में चले जहाँ पे इतना धूप ना हो और वो गर्ल के साथ में उसकी स्पीड जो है वो मैचअप भी करे. She walked really fast. How far away was the food? He was continuously thinking in his mind कि लड़की इतना फास्ट चल रही है और कितना दूर होगा अभी खाने के लिए और कितना दूर जाना पड़ेगा. He was not at all aware. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, फाइनली 1 घंटे तक चलने के बाद दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग. एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं. वहाँ पे लिखा होता है श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम. सो बेसिकली वहाँ पे किसी की शादी हो रही थी एंड द नेम वॉज रिटन ऑफ द फैमिली जिनका वहाँ पे मंडप बना हुआ था. रेड वेलू स्लोली तमिल में लिखा हुआ था, वो पढ़ रहा था. असाइनमेंट लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड. ऑफ फ्लावर्स से लेटर्स बनाए गए थे जिसमें लिखा हुआ था. ग्रूम का नाम था जेवी विनायगन एंड ब्राइड का नाम था रानी. सो बेसिकली दे वेंट टू अ बिल्डिंग जहाँ पे किसी की वेडिंग सेरेमनी चल रही थी. वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड. सो वो देखने लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी कार्स जो है वो बिल्डिंग के बाहर पार्क करी है. वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस स्टेप्ड ऑन टू इट. उसने देखा कि एक कार पे तो पूरा डेकोरेशन किया हुआ है, अच्छे अच्छे बड़े से फ्लावर्स के गार्लैंड और रोजेस जो है वो टेप किए उसके ऊपर लगाए हुए, चिपकाए हुए. द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर. तो गर्ल ने आजू बाजू देखा, नोबडी वाज सीइंग हर. सो उसने वो एक जो रोज़ था उसमें से निकाल लिया कार में से जो चिपकाया हुआ था एंड शी पुट इट इन हर हेयर. एंड देन शी सेज टू वेलू, कम ऑन चलो अभी. आर वी गोइंग टू ईट हियर? आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड. तो वेलू एक बार के लिए तो खुश हो जाता है, ऐसा सोचता है कि हम इधर खाने वाले इतने बड़े से हॉल में और देखो कितने सारे लोग हैं अंदर. तो गर्ल सेज होप्स, सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज. शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल. बोला इतने होप्स मत रखो, ये सब होप्स अच्छे नहीं है.
वो बिहाइंड द हॉल देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन, एक बड़ा सा गार्बेज बिन था जो ओवरफ्लो हो रहा था, मीन्स बहुत ज़्यादा ही भर गया था कचरे से और कचरा पूरा नीचे गिर रहा था। 2 goats वर ऑल्सो स्टैंडिंग देयर, और वो पाइल में से वो जो पूरा कचरा था उसमें से देवर ईटिंग बनाना लीफ, जो गोट्स से दो वो लड़ रहे थे एक बनाना लीफ के ओवर, और बहुत सारी फ्लाइज भी उधर बस करी थी, उधर घूम रही थी अराउंड देयर लेग्स। देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन देयर, एकदम सड़ी हुई स्मेल आ रही थी गंदी सी वहाँ से। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वेशी बनाना, थोड़ा सा क्रश किया हुआ बनाना था तो वो उसने उठाया और वो वेलू को देती है कि हियर हैव दिस वन। वो बोलती हियर्स योर फूड, और ये देख के वेलू वॉज शॉक कि ये खाना है, वी आर गोइंग टू ईट लेफ्ट ओवर्स, किसी का बचा हुआ नहीं खाया हुआ खाएंगे हम, छी व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। तो वेलू बोलता है नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डॉग हूँ, मैं किसी का टच किया हुआ खाना नहीं खाऊंगा, आई ओनली ईट अनटच्ड एंड गुड फूड। तो बोलती हियर सम मोर, देखो दूसरे बनानाज मिले, कैच, और फिर उसको वड़ा भी थ्रो करती है। हियर शी थ्रू में वड़ा। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेट, उसको बहुत गंदा लग रहा था कि मैं ये सब खाऊंगा कचरे में से, आई विल ईट फूड, बिकॉज ही हैड नॉट सीन दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस और कंडीशंस बिफोर। कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट। लड़की बोलती कि चलो हीरो खाने लगो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे भी पसंद है, आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, तो मैंने ढूंढ के दिया, अब खाना है तो खाओ और एल्स लेट इट गो, डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू। तो गर्ल सेज कि ऐसा मत सोचना कि मेरे पास में पैसे है कि मैं तुम्हें पैसों से खाना खरीद के दूंगी। यू बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। तो लड़की बोलती कि अभी जो मिल रहा है वही खाओ जब तक तुम्हारे पास में खुद के पैसे ना हो पैसे खाना खरीदने के लिए। तो वेलू हेजिटेटेड, थोड़ा सा हिचकिचाया, बट स्टिल ही वॉज वेरी हंग्री, और उसका स्टमक और भी स्क्वीज़ हो रहा था, बार बार ट्विच और पेन हो रहा था विथ हंगर। सो बिना सोचे समझे ही जस्ट कर्व डाउन द बनाना एंड वड़ा, मीन्स उसने स्वेलो कर लिया बिना चू करे हुए। एंड थोड़ा सा ये खाने के बाद हिज स्टमक वॉज फीलिंग बेटर। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, ही थॉट कि इससे भी 10 गुना ज़्यादा खा सकता था, लेकिन गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना। लेकिन उस गर्ल्स को ज़्यादा कुछ मिला नहीं, उसको एक और बनाना ही मिला जो उसने खुद खा लिया। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली इटन टिफ़िन, अभी सुबह का ही टाइम हुआ था। सो जो गेस्ट आए हुए थे हॉल में उन्होंने सिर्फ टिफ़िन खाया हुआ था, मीन्स ओनली स्नैक, दे डिड नॉट हैड द लंच प्रॉपरली। तो लड़की बोलती कि इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर दैम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा कि वो अपना लंच फिनिश करे तो हमें थोड़ा सा लंच भी खाने को मिलेगा। You can wait if you want, I have to work, I am going. So the girl suggest वेलू कि if you want to have lunch you will have to wait, तो तुम्हें वेट करना है तो तुम कर सकते हो, बट मुझे काम है, I have work so I'll have to go. So she picked up a couple of bottles from the heap, वापस वो कचरे में से थोड़ी प्लास्टिक की बॉटल्स उठाती है, अपने सेक में डालती है, एंड शी वॉकड ऑफ, चली जाती है। अभी वेलू पैनिक, वो घबरा गया, ही गॉट वरीड, ही रियलाइज्ड कि अगर वो लड़की ने उसको छोड़ दिया तो कहाँ जाएगा, ही हैज़ नो आइडिया कि वेयर ही वुड गो। सो ही थॉट दैट इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, ही थॉट कि उसके साथ में ही रहने में भलाई है, क्योंकि उसे पता है आजू बाजू के रास्ते, शी हैड लिव्ड हियर सो शी न्यू वेयर टू गो। सो वो भी उसके पीछे पीछे भागा। ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, उसको पता ही नहीं था कि गर्ल का नेम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर। सो गर्ल के पीछे भागते भागते ही आस्क्ड द गर्ल दैट व्हाट वाज हर नेम। She stopped and turned around. Oh, so you have been following me around without even knowing my name? So girl tries to mock and tease him by telling him that, oh, so you have been following me, means वो उसको follow कर रहा है, उसको उसका name भी नहीं पता है। Then she tells her name to him that my name is Jaya. Her name was Jaya. And Velu tells her that I am not following you. Then the girl again tease him by asking, what then? Who got you food? अच्छा तो तुम फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, खाना तुम्हें किसने दिलाया? सो देन वेलू आस्क, कैन आई कम विथ यू, वेयर आर यू गोइंग? तो वेलू उसको पूछता है कि क्या मैं आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? तो गर्ल सेज कम इफ़ यू वांट, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम कम आ सकते हो। दिस बैग इज फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। सो द गर्ल टेल्स वेलू कि जो उसका सैक था, उसका जो बैग था वो फुल हो चुका है, भर चुका है, अभी उसको घर जाके दूसरा लेना पड़ेगा टू कलेक्ट मोर थिंग्स। Now in the next part they'll go to the girl's place. Now what happens in the next part we'll see in the next class. Till then please read the lesson properly and go through it.
and complete the PDF that will be sent you through Google Classroom. Thank you.